Good morning, and let's start. Let's start, or we shall move to the French Revolution today. French Revolution. Yesterday, I told you a clear sentence that torch of liberty, which was ignited in America, soon set ablaze France. So, this sentence had larger implication. Means it was something like spring of the revolt or revolution that generated in America in the form of establishment of republicanism and constitutionalism. It had reached to the France also, and the French people, they also raised to revolution against the despotic monarchy. So this is a reason why there is an exact correlation between American Revolution and the French Revolution. This trend will not stop here, because consequences of both the revolution will create many changes in Europe and the rest of the world. Many problems in the Europe and the rest of the world. So today we'll start the French Revolution. French Revolution is the single most event in the world which is affecting the world order even today. So, what shall be the causes of the French Revolution? Let us summarize. Fundamentally, French society, French peasant was more prosperous than the other European countries. Understand the fact. Sometimes poverty and adversity bring the revolution. Sometimes prosperity bring the revolution. The French peasants were much more prosperous than other peasants of the other European peasants. Therefore, there was plenty of chances of asking the demand against the despotic monarchy. Look, France was ruled by Bourbon dynasty. Bourbon dynasty was the ruling dynasty of the France, and the title of the ruler was Louis. Louis I, Louis II, Louis III. So they kept on rolling the titles. During the time of Louis XIV, he was a ruler of exceptional merit, Louis XIV. And Louis XIV, he was absolutist in nature. Louis XIV said, I am the king, and my words are laws. I am the king, and my words are laws. So you can understand that how beautifully he transformed a despotic monarchy into absolute monarchy. There was no democratic institution to help Louis XIV. Himself, he became the state. But at the same time, there was a large scale innovations and development taken place during his time. He was badly engaged in wars with many European countries. Therefore, the French militarization reached its zenith.
overall development. He was very generous to the peasants, and peasants were more prosperous during his time. He appointed a Cardinal Richelieu to improve the relations of France with the foreign countries. So, as a foreign minister, Richelieu did the wonderful job, and he improved the relation with the many Roman Catholic countries. So there was all-round development of the France during the time of Louis XIV. He suggested his successors, Louis XV and Louis XVI, do not engage in unnecessary European wars. You can change your friend, but not the neighbors. But Louis XV, he ignored the warning of Louis XIV, his father, and involved France in many unnecessary European wars. And the worst was the 7 Years' War. And you know the consequence that in 7 Years' War, France lost. And France lost many colonies all over the world, including India. It was a disastrous blow to the French affair. Therefore, the incompetency of Louis XV got exposed. What a comparison! Superlative nature of Louis XIV and defeative or defensive nature of the Louis XV. His son Louis XVI was more incompetent. So there was a series of incompetency. So Louis XVI, he got married with Marie Antoinette, and she was the Princess of Austria. And this monarchy was hated in France. Austrian monarchy was hated in France. So Marie Antoinette, she was known as hated Austrian rather than the Queen of the France. And Marie Antoinette, she believed in the despotic monarchy. Therefore, she directly interfered in the affairs of state. And her reckless interference, her massive expenditure, finally caused the political factor in the France to go with the revolution. So these are the political factors. Marie Antoinette hardly distinguished between the personal wealth and the state treasury. He was badly engaged in extravagant expenses. She always favored the elite class, nobles and the priest. Therefore, large-scale discontentment had developed against the monarchy. And this resulted in revolution. So this was one of the factors that's called political factor. Political factor that led to the revolution in France in 1789. We have described about the period of Louis XIV, Louis XV and Louis XVI. You can very much understand that what went wrong after a huge powerful monarchy succeeded by a very weak and defensive monarchy. Okay. I hope all of you, all the batches had understood this point. Despotic monarchy means all the powers was within the purview of the state. All the powers
within the purview of the state. Within the purview of the state. देखिए जरा हमारे जीनियस बच्चे समझ में आए? अनामिका, आदर्श, अभिषेक, तलेश जोशी, they are all the brilliant boy of this latest batch. Yes. Great to see you, such a beautiful response. Okay, fine. Subrani, Ansika, Kanak, Jaideep, great. So can we write the part of the French Revolution? Start writing French Revolution. French Revolution was one of the biggest event in world history. French Revolution was one of the biggest event in the world history, which was responsible for creating many fundamental changes in the world. Many fundamental changes in the world. There are many factors which resulted in French Revolution. There are many factors which resulted in French Revolution. देखो मैंने कहा था कि डिस्पोटिक मोनार्की and turn into absolute monarchy. So in despotic monarchy there are many democratic institutions to advise the king. There is a parliament, there is a cabinet, altogether. Despite the fact that monarchy is there, but without any control on the monarchy, there are many democratic organizations, right? But as far as absolute monarchy is concerned, the king is the only decision maker. You can see the words of Louis XIV. I am the state, my words are laws. So hardly there is a meeting of parliament, there is discussion on anything affairs of the state. It is the king who will decide the fate of the state. Absolute monarchy. This is called absolute monarchy. Okay. So, Bourbon dynasty. There are many factors. Political factors. Political factor. French society was more prosperous than other countries of the Europe. More prosperous than other countries of the Europe. French society was, note करिए, French society was more prosperous than other countries of Europe. It was ruled by despotic monarchy
known as Bourbon dynasty. Bourbon dynasty. Despotic monarchy known as Bourbon dynasty. Despotic monarchy ruled by Bourbon dynasty. The title of the ruler was Louis. Title of the ruler was Louis. Title of the ruler was Louis. During the time of Louis XIV, during time of Louis XIV, French monarchy became absolute. French monarchy became absolute. All democratic institutions were closed. Like parliament, all democratic institutions were closed. All democratic institutions were closed. All democratic institutions were closed. He was very generous towards the peasant. Generous towards the peasant. Very generous towards the peasant. He distributed land to the peasant. He distributed land to the peasants. He was very generous towards peasant. He distributed land to the peasants. There was massive militarization. Militarization of France. Massive militarization of France. He appointed a cardinal. कार्डिनल होता है, आप जानते हैं, कार्डिनल. He is the hierarchy in the church, pope, bishop, cardinal. So he appointed cardinal as foreign minister. As foreign minister to improve the relation with the Roman Catholic countries. He appointed a cardinal as foreign minister to improve the relation with the Roman Catholic countries. Roman Catholic countries. He appointed a cardinal as foreign minister. So during the time of Louis XIV, appointed a cardinal as foreign minister. Louis XIV. To improve relation with the Roman Catholic countries. His finance minister, Colbert, constituted French East India Company.
constituted French East India Company, which came to India in 1664. Which came to India in 1664. French East India Company, which came to India in 1664. Therefore, France started mercantilism. France started mercantilism. ये पॉइंट समझ में आया आपको? यही टाइम था जब लुई 14th रूलर था and his finance minister Colbert had constituted French East India Company, which came to India in 1664. Therefore, France started mercantilism. So, लुई 14th के समय में काफी जबरदस्त डेवलपमेंट हुआ फ्रांस का. It is called all round development of France. स्टेट टू स्टेट ट्रेड को मर्केंटलिज्म बोलते हैं. फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी सरकारी कंपनी थी एंड गवर्नमेंट वाज इन्वॉल्व्ड इन द प्रॉफिट मेकिंग, देयरफॉर दे सेंट कंपनी टू इंडिया. दिस इज कॉल्ड मर्केंटाइल पीरियड. ये बात मैंने मॉडर्न इंडिया में भी डिस्कस की थी, फिर भी पूछ रहे हैं आप. तो लुई 16th का है, लुई 14th का ही टाइम था एंड देयर वाज प्रॉस्पेरिटी इन फ्रांस. बट मैंने आपको बताया कि लुई 15th और लुई 16th में इस बात का कंपटीशन था कि कौन दोनों में कौन निकम्मा था, और लुई 16th उसमें फर्स्ट कर जाता था हमेशा. तो लुई 15th ने फ्रांस को बहुत ही अननेसेसरी यूरोपियन वॉर्स में इन्वॉल्व कर दिया. ठीक है, अननेसेसरी यूरोपियन वॉर्स में इन्वॉल्व कर दिया. इसमें वर्स्ट था ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन, वर्स्ट था 7 years वॉर. दोनों वॉर के बारे में मैंने मॉडर्न में भी डिस्कस किया था. सो ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन, 7 years वॉर, ये सब लुई 15th के टाइम में लड़ा गया था. और आप जानते हैं कॉन्सिक्वेंसेस कि किस तरह से फ्रांस जो है वो अपनी सारी कॉलोनीज लूज कर गया. एंड दैट अल्टीमेटली क्रिएटेड द पाथ ऑफ रिवॉल्यूशन. एक सीरियस इकोनॉमिक और पॉलिटिकल क्राइसिस में फ्रांस जाने वाला है. और उस पर लुई 16th जो फ्रांसीसी हार के आया था ऑस्ट्रिया में इंग्लैंड के हाथों. ऑस्ट्रिया में इंग्लैंड और फ्रांस लड़ रहे थे और ऑस्ट्रिया के मोनार्की ने इंग्लैंड को सपोर्ट कर दिया. तो जो फ्रांसीसी हार के आए थे, और लुई 16th ने ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस से शादी कर ली. एकदम फ्रांस के लोग उसको रानी मानने के लिए तैयार ही नहीं थे. फ्रांस के लोग बोलते थे कि सी इज हेटेड ऑस्ट्रियन. और मैरी एंटोनिएट एक ऐसी प्रिंसेस थी जो इतना खर्चा करती थी, मतलब उसका पर्सनल वेल्थ और राज्य के खजाने में कोई अंतर नहीं था. और हमेशा एलिट क्लास के पूरे प्रिविलेज को प्रिजर्व करना चाहती थी मैरी एंटोनिएट. तो जाहिर है कि जो मोनार्की के अगेंस्ट में गुस्सा था लोगों का, वो काफी ज्यादा एग्रेसिव हो गया. और अल्टीमेटली ये सारी सिचुएशन है, अगर गैप हो जाता है ना रूलर्स और रूल्ड में, राजा और प्रजा में गैप हो जाता है, तो देयर इज अ प्लेंटी ऑफ चांसेस टू ओवरथ्रो द मोनार्की. और इसीलिए फ्रांस में रिवॉल्यूशन. ठीक है बच्चे, आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड दिस फैक्ट. आगे लिखिएगा, लुई 15th involved France in many unnecessary. Louis 15th involved France in many unnecessary European wars. Many unnecessary European wars.
many unnecessary European wars. Involved France in many unnecessary European wars. Louis XVI involved France in many unnecessary European wars. The worst was 7 Years' War. Seven Years' War. The worst was 7 Years' War. Louis XV. The worst was 7 Years' Wars, in which France lost many colonies. France lost many colonies. The worst was 7 Years' War, in which France lost many colonies. France lost many colonies. Louis XVI Louis XVI, he got married with Louis XVI got married with Mary Antoinette. Louis XVI got married with Mary Antoinette. Mary Antoinette. इसको पूरे यूरोप में और कोई शादी करने के लिए नहीं मिला. So she got married with Mary Antoinette. She was Princess of Austria. She was Princess of Austria. She was Princess of Austria. French called her hated Austrian. Hated Austrian. She was involved in massive expenditure. She was involved in massive expenditure. Massive expenditure. She was involved in massive expenditure. She was involved in massive expenditure. She always protected the interest of elite class. That is, nobles and the priest. राइटिंग तो कैपिटल लेटर है,
अब राइटिंग कैपिटल लेटर समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए कौसे की। राइटिंग आई थिंक ओके। क्या आप मोबाइल से पढ़ रहे हैं? हो सकता है उसमें छोटा दिखता हो, बट राइटिंग इज वेरी क्लियर आई थिंक। और बोल भी रहे हैं तो कनेक्ट तो हो ही जाता होगा। दिस इज नॉट अ बैड राइटिंग इन एनी केस। ऐश्वरिका, मानवी, प्रिंस, नेहा, पीयूष पटेल, राइटिंग ठीक है। मानसी, निखिल, जयदीप, राइटिंग आई थिंक इज ओके, नॉट बैड। सो मैंने बोला क्या कि सी वॉज इन्वॉल्व इन मैसिव एक्सपेंडिचर। She always protected the intense interest of the elite class, that is, nobles and the priest. Okay, fine. So, all fine. Therefore, therefore, discontentment, discontentment against the state, against the state had increased. Discontentment against the state had increased. Discontentment against the state had increased. Okay, so this is the political factor. अब जरा सोशल फैक्टर पर आते हैं। सोशल फैक्टर पर आते हैं। सोशल फैक्टर देखो, आराम से सुनो मेरी बात। फ्रेंच सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इन 3 स्टेट्स। फर्स्ट स्टेट वॉज द प्रिस्ट। फर्स्ट स्टेट वॉज प्रिस्ट। सोसाइटी में 3 पार्ट थे, उसको स्टेट बोला जाता था। सो फर्स्ट स्टेट वॉज आज तुमको नहीं छोड़ेंगे हम। सर, ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रेलिया सेम है? बहुत बहुत कूटेंगे, बहुत कूटेंगे निखिल। ऑस्ट्रिया यूरोप में कंट्री है, सर्च करना। और ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है, देश है, कॉन्टिनेंटल कंट्री है वो। सर्च करो, देखते तो हो नहीं तुम लोग मैप निकाल के। ओके, सोशल फैक्टर। सो फ्रेंच सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इन 3 स्टेट। फर्स्ट स्टेट, it comprised of priest. It constituted priest. Second state, it constituted nobles. And third state, it constituted common people. Common people. First state, second state, third state. First state, second state and third state. Common people में प्रोफेशनल क्लास, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर्स, मिडिल क्लास, बिजनेसमैन, पीजेंट, लेबर्स, ये सब होते थे। दिस इज द थर्ड स्टेट।
Okay. So first state, second state, third state. So there are three states in the French society. First state was priest, second state nobles, and third state was the common people called professional class, middle class, business class, peasants, and the laborers. Listen very carefully. First state was priest, and priest was the privileged class, means they will not pay any tax. ठीक है, और देखो दो उसमें भी दो क्लास थे, हायर प्रिस्ट एंड लोअर प्रिस्ट. हायर प्रिस्ट बर्साई में रहता था, और बर्साई उस समय ग्लैमरस सिटी था फ्रांस का, और सारे ऐश करते थे ये लोग, कोई काम नहीं करते थे, दिन रात कैसीनो खेलते थे. और जो लोअर प्रिस्ट है वो विलेज में रहता था, एंड दे वेर हैविंग ऑल द वर्क्स रिलेटेड टू द प्रिस्टली क्लास. तो ये जो लोअर प्रिस्ट था दिन रात हायर प्रिस्ट को गाली देते रहता. सो ऑब्वियसली देयर वाज अ कॉन्ट्रडिक्शन अमॉन्ग दिस प्रिविलेज क्लास, हायर प्रिस्ट एंड लोअर प्रिस्ट. Lower priest had burden of all the works related to the priestly class, and higher priest they enjoy all the life sitting in Versailles. But both were privileged, means they will not pay tax. उसी तरह से नोबल्स में भी था, हायर नोबल्स एंड लोअर नोबल्स. हायर नोबल्स जो है वो वर्साई में रहता है, पूरा ऐश करता है, और जो लोअर नोबल्स है वो विलेज में रहता है, एंड दे कैरीड ऑल द वर्क्स रिलेटेड टू द नोबिलिटी. सो दैट इज हाउ द हायर एंड दैट इज हाउ द प्रीस्ट एंड नोबल्स, डिस्पाइट बीइंग वेरी प्रिविलेज्ड, but at the same time they had a very powerful lobby in the court, in the society. दोनों करीब फ्रांस की 80% प्रॉपर्टी इनके पास थी. 80% प्रॉपर्टी ऑफ द फ्रांस इस दो ग्रुप के पास थी, मगर ये लोग टैक्स नहीं देता था. और जो थर्ड स्टेट है, थर्ड स्टेट जितने टैक्स देते थे सब यही देते थे. अब ये लोग इतना टैक्स देता है कि अब अगर ये टैक्स देगा तो अब ये मर जाएगा. सो दे वर पेइंग ऑल द टैक्सेस ऑफ फ्रांस. मगर लोअर प्रिस्ट और लोअर नोबल्स इसके साथ सिंपैथी रखते थे बिकॉज ऑफ द हायर प्रिस्ट एंड हायर नोबल्स. हालांकि लोअर प्रिस्ट और लोअर नोबल्स भी टैक्स नहीं देता था, बट दे हैड सिंपैथी विद द थर्ड स्टेट. आया समझ में ये? कौशिकी, मानसी, निखिल, मधु, आया सबको समझ में ये पॉइंट कि कैसे डिवीजन था सोसाइटी का? प्रिविलेज और अनप्रिविलेज्ड है, प्रिविलेज क्लास प्रिस्ट और नोबल्स है, एंड एट द सेम टाइम priest was divided in two parts. पूरे क्लास में एक बच्चा है पीयूष, उसको कुछ पूछो नहीं आया सर. ठीक है, उसको पूछो कि दिन हो गया क्या, नहीं आया सर. कोशिश करेगा तब तुमको लगता है कि कोचिंग में एडमिशन ले लिए, उसके बाद हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम आराम से स्क्रीन देखते रहें और सब कुछ याद हो जाए और सब एकदम पेपर में लिख करके सीधा आईएएस का सर्टिफिकेट हाथ में कोई दे दे, बस. कोशिश करेगा तब ना. इसमें समझने की क्या बात है, सिंपल स्टोरी है ये. अब स्टोरी समझने में समझ नहीं आ रहा है, दिमाग लगाना पड़ रहा है. यस, फ्रेंच सोसाइटी. सो देखिए इसमें द फर्स्ट स्टेट कंप्राइज्ड ऑफ priest. There were two kinds of priest, higher and lower.
There are two kinds of nobles, higher and lower. Higher priests and nobles, they live in Versailles. Lower priests and lower nobles live in villages. And they had all burdens. Higher priests and higher nobles, no work. No work. And lower priests and lower nobles had all burdens. Therefore, they had sympathy with third estate. They had sympathy with third estate. With third estate. They had sympathy with third estate. इस इक्वेशन को समझ पाए? Third estate, they gave all the taxes of France. They gave maximum taxation. सर इसको आप ठीक से लिखिए, ठीक से कॉपी करिए, मैं इसको फिर से सोसाइटी के पृष्ठ के बगैर कहां चलता है, क्योंकि सोसाइटी जो है ना वो निकम्मी होती है बिल्कुल, और उसको अगर आप काम दे दिए तो वो चाहता है कि कुछ ऐसा चीज हो जाए जो सारा बर्डन झेल ले, और पृष्ठ झेलता है क्यों? गॉड के ऊपर वो डाल देता है. सो फर्स्ट स्टेट priest, second estate nobles, third estate the common people. Higher lower class both sides no work, higher lower class village all burdens. And sympathy with third estate, they gave maximum taxation of France. They gave maximum tax of France. लिख लिया? इसको आगे लिखिए आप. Therefore French society was divided in, therefore French society was divided in privileged and unprivileged class. Privileged and unprivileged class. French society was divided in privileged and unprivileged class. French society was divided in privileged and unprivileged class. So class contradiction resulted in revolution. Class contradiction resulted in revolution. Class contradiction resulted in revolution. Class contradiction resulted in revolution.
class contradiction resulted in revolution. Resulted in revolution. उसके बाद आइए इकोनॉमिक फैक्टर. इकोनॉमिक फैक्टर देखो, फ्रांस बुरी तरह से इकोनॉमिक क्राइसिस में जूझ रहा था. खासकर जब 7 इयर्स वॉर समाप्त हुआ, तब तक फ्रांस की इकोनॉमिक कंडीशन एकदम स्पॉइल हो चुकी थी. फ्रांस के लोगों को जरूरी सामान नहीं मिल रहे थे. फ्रेंच मार्केट में अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स नहीं था. तो देखो, ऐसे हालात में इंग्लैंड बहुत चालबाज कंट्री है. इंग्लैंड ने तुरंत फ्रांस को ऑफर किया कि एक एग्रीमेंट कर लेते हैं, सामान हम देंगे तुमको. 1786 में एक ट्रीटी हुई जिसको बोलते हैं ट्रीटी ऑफ ईडेन. और ट्रीटी ऑफ ईडेन के बाद फ्रांस के जो मार्केट थे, दैट वाज ओपन्ड फॉर द ब्रिटिश इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट. और एक बार ब्रिटिश इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट फ्रांस के अंदर चली गई, उसकी क्वालिटी काफी सुपीरियर होती थी, कॉस्ट भी काफी कम होता था. सो देयरफॉर फ्रेंच गुड्स का डिमांड फ्रांस में ही खत्म हो गया. फ्रेंच इंडस्ट्री कोलैप्स कर गई. आपने कल का डाटा देखा, इंडिया का जो इंपोर्ट है चाइना के साथ वो 100 बिलियन है और इंडिया का एक्सपोर्ट मात्र 26 बिलियन है. इतना बड़ा गैप क्रिएट हुआ है और आपकी हिम्मत नहीं है चाइना को बोलने की कि ये गैप थोड़ा कम करिए और हमारे सामान को आने दीजिए. इतनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कमजोर है आपकी. और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कमजोर होने का मतलब ही है कि आप निकम्मे हैं, आप एक्सपेरिमेंट करना नहीं चाहते, आराम तलब आदमी हैं. आप योगा, यज्ञ और तपस्या, इन सब चीजों में अपना जीवन ढूंढिए. बाकी की दुनिया साइंटिफिकली काफी प्रोग्रेस कर चुकी है. हमारा जो आध्यात्मिक कैरेक्टर है तो बहुत बेहतरीन चीज, मगर ये दुनिया के मैटेरियलिस्टिक ग्रोथ के साथ मैच नहीं कर पा रहा है. हमें टाइम डिवीजन करना होगा कि व्हाट ए टाइम वी आर गोइंग फॉर साइंस एंड व्हाट टाइम वी आर गोइंग फॉर द मेटाफिजिक्स. इन सब चीजों के बीच में बैलेंस नहीं बनाएंगे, मगर इसके लिए भी तो एक प्लानिंग की जरूरत होती है, जो आप प्लानिंग के नाम पर तो एकदम रजाई ओढ़ लेते हैं. तो चैलेंजेस बहुत है और चैलेंजेस इंडिया इसलिए फेस कर रही है कि हमारा वर्क कल्चर ही खराब है. सीधी बात है. तो फ्रांस के लोग भी बिल्कुल उसी हालात में थे. और अल्टीमेटली जो प्रॉब्लम होना था कि वहां पर मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट हो गया. और अनएम्प्लॉयमेंट किसी कंट्री में सूट करने लगे ना, तो वहां पर रिवॉल्यूशन होने में देर नहीं लगती. दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक फैक्टर. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. इकोनॉमिक फैक्टर. आफ्टर डिफीट ऑफ फ्रांस इन 7 years वॉर, after defeat of France in 7 years war, French economy had crashed. French economy खराब हुई. 7 years war, French economy had crashed.
there was shortage of goods in the French market. Shortage of goods in French market. Shortage of goods in the French market. Shortage of goods in French market. Shortage of goods in French market. Therefore, in 1786, Treaty of Eden was signed. Treaty of Eden was signed with England. Treaty of Eden was signed with England. Treaty of Eden was signed with England. देखिए शिवा ने कितना अच्छा बताया कि सर आप पढ़ाते हैं तो इस सब्जेक्ट में बहुत सेटिस्फैक्शन मिलता है। देखिए इस बच्चे ने बड़ी दिल से बात लिखी है बिल्कुल, और काफी सोच समझ के लिखा है इन्होंने। और एक अश्वारिका ने तो गजब लिखा है, wasn't in the good state of mind, reluctantly joined the class is feeling like I am time traveling, I am feeling better, thank you sir। देखो कितना अच्छा बात लिखे हो, ये सब तो तुम लोग बड़े क्रिएटिव हो भाई। So 1786 Treaty of Eden with England. Treaty of Eden with England. French market was opened for the English product. French market was opened for English product. French market was opened for English product. English product. Therefore, demand of the French goods had decreased. Demand of the French goods. Therefore, demand of the French goods had decreased. Had decreased. Demand of the French goods had decreased. Industry closed. Industrial closure. Industrial closure. Massive rise in unemployment. Massive rise in unemployment. Massive rise in unemployment. This resulted in revolution in France. This resulted in revolution in France. Revolution in France. ठीक है, नेक्स्ट फैक्टर है इंटरनेशनल फैक्टर। इंटरनेशनल फैक्टर, ये तो मैंने आपको पढ़ाई ही था कि टॉर्च ऑफ लिबर्टी विच वॉज इग्नाइटेड इन अमेरिका सून सेट अब्लेज फ्रांस। याद है आपको? मीन्स the French soldiers successfully helped Americans
in getting independence and establishment of republics. But France itself was in the despotic and absolute monarchy. Therefore, these soldiers lit the fire of revolution. This is international factor. अमेरिका की जो अमेरिका की जो सबसे बड़ी खासियत थी, एंड दैट इज द ग्रेट स्प्रिंग ऑफ द रिवॉल्यूशन फॉर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड रिपब्लिकनिज्म. आया समझ में? कौन सा डाटा बच्चे? विच डाटा राहुल? दिस रिजल्टेड इन रिवॉल्यूशन. थैंक यू दीप्तिस, डूइंग द ग्रेट वर्क. आप खुद ही रिप्लाई कर देते हैं, दैट इज वेरी गुड. सो इंटरनेशनल फैक्टर. अब आगे देखो बच्चे, मैंने क्या बोला आपको कि इंटरनेशनल फैक्टर. फ्रेंच soldiers greatly helped Americans. French soldiers greatly helped Americans in getting independence. Greatly helped Americans in getting independence and establishment of republicanism. French soldiers greatly helped Americans in getting independence and establishment of republicanism. Establishment of republicanism. But France itself under despotic and absolute monarchy. France itself under despotic and absolute monarchy. France itself under despotic and absolute monarchy. Therefore, they lit the fire of revolution. Lit the fire of revolution. They lit the fire of revolution. They lit the fire of revolution. राइट, रिपब्लिकनिज्म. उसके बाद देखो रोल ऑफ इंटेलेक्चुअल्स.
जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं उसकी भूमिका देखिए। और रोल ऑफ इंटेलेक्चुअल्स में तीन ग्रेट फिलोसोफर्स, थ्री ग्रेट फिलोसोफर्स, मॉन्टेस्क्यू, वोल्टेयर एंड रूसो। थ्री ग्रेट फिलोसोफर्स, मॉन्टेस्क्यू, वोल्टेयर एंड रूसो। Montesquieu, I told you that his book was Spirit of Law. Montesquieu had a book, Spirit of Law. आप जानते हैं ये तीनों फिलोसोफर पैदा तो अलग अलग टाइम में हुए थे, बट दे डाइड एट द सेम टाइम, 2-3 साल के गैप में। यस काव्या, यू कैन प्रोसीड योर प्रिपरेशन। ठीक है, देखो बच्चे, राहुल ये तुम डाल दो, उस मिनट पर आ जाएगा सारा डाटा। 1000 वेबसाइट पर ये सारा उपलब्ध है, इंडिया और चाइना के बीच में क्या गैप हुआ था। सो मॉन्टेस्क्यू द स्पिरिट ऑफ लॉ, इसने कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का एडवोकेसी किया, मतलब एब्सोल्यूट मोनार्की और डिस्पोटिक मोनार्की का एकदम अगेंस्ट में था मॉन्टेस्क्यू। फ्रांस में ये फिलॉसफी काफी काम की। सो अगेंस्ट द डिस्पोटिक मोनार्की, एब्सोल्यूट मोनार्की एंड सेपरेशन ऑफ पावर्स का मतलब है कि एक आदमी के हाथ में सारा पावर नहीं होना चाहिए। There should be a separate institution, separation of powers and balance of powers, executive, judiciary and legislature. Right? ये जो कॉन्टेक्स्ट है इसको हम लोग काफी इंपॉर्टेंट मानते हैं। That is how the peoples got the idea against despotic and absolute monarchy. ओके, दूसरा हमने वोल्टेयर के बारे में बताया था। वोल्टेयर को चर्च से काफी ज्यादा उम्मीद थी। चर्च कहता है कि चर्च सुपरस्टिशन, ट्रेडिशनल बिलीफ को स्प्रेड करता है, राइट? सुपरस्टिशन, हाँ ये लिख चुके हैं, मैं बता रहा हूं केवल। तो वोल्टेयर जो है वो सेकुलर स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। आप जानते हैं फ्रांस की जो 1/5 लैंड थी वो चर्च की लैंड थी, और चर्च उस पर टैक्स वसूलता, जिसको टाइथ बोलते हैं। तो ये बोलता है कि चर्च को बोलता है कि ये टैक्स वसूलने की जरूरत नहीं है, चर्च को काम है ही नहीं है। सो वोल्टेयर बोलता है कि चर्च शुड नॉट इंटरफेयर इन द अफेयर्स ऑफ स्टेट। वोल्टेयर बोलता है कि चर्च इज ओनली रिलेटेड टू द रिलीजन। ठीक है, मगर थर्ड जो है रूसो, ठीक है, रूसो। मैंने बताया वोल्टेयर के ख्याल बिल्कुल डेमोक्रेटिक नहीं थे, ऑटोक्रेसी में बिलीव करता था। ये जो जनता के लिए काफी डेडिकेटेड ऑटोक्रेसी है, बेनेवोलेंट ऑटोक्रेसी है, जो लोक कल्याणकारी है, वो उसको रूसो इन हिज बुक सोशल कॉन्ट्रैक्ट बोलता है कि मनुष्य जब पैदा होता है तभी तक वो स्वतंत्र रहता है, उसके बाद वो जंजीरों में जकड़ जाता है। ठीक है, और बोलता है कि जब तक सोसाइटी में इक्वालिटी नहीं होगी तब तक लिबर्टी का कोई चांस नहीं। तो इस तरह से फिलोसोफर के रोल्स ने काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया फ्रेंच रिवॉल्यूशन। सो समटाइम्स इट इज ऑल्सो नोन एज द इंटेलेक्चुअल रिवोल्ट, समटाइम्स इट इज ऑल्सो नोन एज इंटेलेक्चुअल रिवोल्ट। ये फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था, यस मानसी, राइट यू आर, और हम इसको उसी को हम यूज कर रहे हैं यहां पर कि ये जो एज ऑफ एनलाइटनमेंट है, दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द राइज ऑफ द स्टेट, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द राइज ऑफ द स्टेट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट, रूसो का सोशल कॉन्ट्रैक्ट, man is born freely and is bound in chains everywhere. It raised the revolutionary spirit of the people.
something more good is coming. Montesquieu, Voltaire and Rousseau. तो ये चार फैक्टर्स हमने देख लिए, 5 फैक्टर हम लोगों ने देखे, ठीक है। थॉमस पेन का नाम यूज कर सकते हैं इसमें, कर दिए प्रतिभा। थॉमस पेन अमेरिका के बहुत बड़े थिंकर थे। थॉमस पेन ने ही तो लफायते के साथ मिलकर के फ्रांस में रिवॉल्यूशन क्रिएट किया, फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया, नॉट रिवॉल्यूशन, फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया था। ओके, अब देखो स्टोरी बड़ा इंटरेस्टिंग बताता हूं, मजा आ जाएगा सुन के तुम लोगों को। लुई 16 वैसे तो बहुत निकम्मा आदमी था, इसमें कोई शक की बात नहीं, बट कभी कभी उसका दिमाग काम करता था और काम करना चाहता था मगर वो कर नहीं पाता था। एक बेबस कॉम्पिटेंसी थी उसमें, हेल्पलेस पर्सनालिटी था वो। तो लुई 16 चाहता था कि फ्रांस में अगर इकोनॉमिक रिफॉर्म नहीं होगा ना तो फ्रांस कोलैप्स कर जाएगा। थर्ड स्टेट इतना टैक्स दे रहा है कि अब वो टैक्स नहीं दे सकता है, और जो लोअर प्रिस्ट, जो प्रिस्ट और नोबल्स है, उनके पास इतनी संपत्ति है कि अगर थोड़ा बहुत दे भी देगा तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर नहीं देगा वो, क्यों? प्रिविलेज खत्म हो जाएगा, हम इसके बराबर आ जाएंगे, इसलिए वो टैक्स नहीं देगा। गजब का सिस्टम था फ्रांस में। आप अपने देश में इनइक्वालिटी की बात करते हैं, फ्रांस की बात मैं कर रहा हूं 18वीं शताब्दी में, 18th। आप तो बोलते हैं एंसेंट इंडिया में था और ये था वो था, मगर फ्रांस में तो मॉडर्न डेज में तक था। और जब तक रिवॉल्यूशन नहीं होता ना तब तक ये चीजें समाप्त भी नहीं होती है, ध्यान रखिए आप। तो खैर हमारे देश में तो रिवॉल्यूशन हो ही नहीं सकता है, हमारा तो डीएनए ही रिवॉल्यूशनरी नहीं है, हम लोग तो इवोल्यूशन हो रहे हैं अभी भी। इस एशिया में रिवॉल्यूशन हो इसकी संभावना बहुत कम है, डीएनए ही इवोल्यूशनरी है बिल्कुल। तो क्या हुआ बच्चे कि लुई 16 ने बोला कि एक काम करते हैं, फ्रेंच पार्लियामेंट की मीटिंग बुलाते हैं एंड पार्लियामेंट विल डिसाइड अबाउट द टैक्सेशन सिस्टम इन फ्रांस इफ न्यू टैक्सेस टू बी एडेड। 175 साल के बाद, 175 साल के बाद फ्रांस में फ्रेंच पार्लियामेंट की मीटिंग बुलाई गई। पार्लियामेंट तो पेरिस में था, मगर ये जो बड़े नोबल थे, हायर नोबल, हायर प्रिस्ट, वो बोला कि ऐसा है कि ये फालतू काम के लिए ना हम वर्साई छोड़ के पेरिस नहीं जाएंगे। पेरिस में अच्छे अच्छे होटल नहीं है, कैसीनो नहीं है, अगर तुमको पार्लियामेंट की मीटिंग बुलानी है तो वर्साई में बुलाओ। तो राजा ने बोला कि ठीक है, नोबल्स का, प्रिस्ट का इंपैक्ट तो था ही, बोला कि ठीक है हम वर्साई में बुला लेते हैं मीटिंग। तो क्या हुआ कि जो 3 स्टेट थे उसके 300 रिप्रेजेंटेटिव्स वेयर देयर इन द पार्लियामेंट। 300 फॉर द थर्ड स्टेट, 300 फॉर द नोबल्स, 300 फॉर द प्रिस्ट। ये 300 की कैपेसिटी वाला पार्लियामेंट था और इसकी मीटिंग वर्साई में बुलाई गई। जिसके दादाजी के दादाजी पार्लियामेंट्रियन रहे होंगे, उन लोगों ने अपना ब्लैक गाउन निकाला जो संसद सदस्य पहनते थे, बक्सा में आयरन वायरन किया, उसको बक्सा से निकाल के आयरन वायरन किया और फिर तैयार हो गए संसद में बैठने के लिए। और राजा ने एक अच्छी बात की कि 300 प्रिस्ट था, 300 नोबल था, तो थर्ड स्टेट की संख्या 600 कर दिया ताकि प्रिविलेज और अनप्रिविलेज का जो संख्या है वो बराबर हो सके। और बहुत सारे नए संसद सदस्य थर्ड स्टेट में जोड़े गए। ठीक है, अब तो बैलेंस मामला हो गया है संसद में, और राजा उम्मीद कर रहा था कि कुछ बड़े आर्थिक फैसले संसद लेगी और फ्रांस में इकोनॉमिक रिफॉर्म होगा। So meeting of States General, which was not convened for the 175 years, it was convened in France. So meeting of States General was organized in Versailles, the glamorous city of France.
Main purpose was to proceed the economic reform in France. But this meeting of States General, it had turned into the political reform. मैं आपको बताता हूं कैसे। जब मीटिंग स्टार्ट हुई, राजा आया और राजा वैसे ही था बिल्कुल। मेरे दादाजी वैसे, मेरे पिताजी वैसे, मैं वैसा, एकदम खूब जितना ढोल पीटना था म्यूजिक के साथ, वो सब उसने संसद में बोला, मगर वही नहीं बोला जिसके लिए वो आया था। इतना बोल के वो निकल गया। जब वो निकला तो पृष्ठ भी निकल गए साथ में, नोबल्स भी निकल गए साथ में। ये जो थर्ड स्टेट वाले लोग थे वो एक दूसरे का मुंह देख रहे थे कि हम लोग आए क्यों थे इधर। सो थर्ड स्टेट में से आवाज आई, एक मीराबाऊ नाम का आदमी था, उसने बोला कि डू वी नीड किंग इन द फ्रांस? फ्रांस को राजा की जरूरत है क्या? यह सवाल बड़ा फायरी था। मीराबाऊ का यह सवाल बहुत फायरी था कि फ्रांस को राजा की जरूरत है क्या। बात एकदम आग की तरफ फैली। अगले दिन राजा को पता चल गया ये लोग उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है, सवाल पूछ रहा है। राजा ने संसद में ताला लगा दिया। राजा ने संसद में ताला लगा दिया। बारिश हो रही थी, थर्ड स्टेट के लोग आए, गार्ड ने बोला कि संसद समाप्त हो गई है, घर जाइए। अब ये जो थर्ड स्टेट के लोग थे एक टेनिस कोर्ट में जमा हो गए और इन लोगों ने हाथ पर हाथ डाल करके यह शपथ लिया, ओथ लिया कि टिल वी हैव द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इन फ्रांस वी विल नॉट गेट सेपरेटेड। एंड दिस इज द रीजन व्हाई नाउ द डिमांड इज द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इन फ्रांस। सो मीटिंग ऑफ स्टेट्स जनरल व्हिच वाज ऑर्गेनाइज्ड फॉर द इकोनॉमिक रिफॉर्म, इट ग्रेजुअली मूव्ड इनटू द पॉलिटिकल रिफॉर्म। France will have a new constitution that is based on the rules and obligations, separation of powers, accountability of work. All these parameters will be defined. So third state was greatly motivated to find the new constitution in France, and it is perhaps called the beginning of the French Revolution. Understand? ये सारे पॉइंट्स हैं, इसको थोड़ा ध्यान में रखिए आप लोग। ओके, इस बीच में बच्चे बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, सुनो। ये सब कहां हो रहा है? पेरिस, वर्साई में, कि हमें नया संविधान चाहिए, संविधान चाहिए। और जैसे ही ये डिमांड उठी ना, तो जो लोअर पृष्ठ थे और लोअर नोबल्स थे वो भी भाग के इसके साथ आ गए। बोला कि हाँ हाँ, काम बांटो, काम बांटो, क्योंकि ये लोग काम के बर्डन से दबे हुए थे और दूसरा ग्रुप वर्साई में ऐश कर रहा है, काम बांटो, काम बांटो। तो जाहिर है कि जो थर्ड स्टेट में लोअर पृष्ठ और लोअर नोबल्स आ गए तो इसकी संख्या बहुत बढ़ गई, स्ट्रेंथ काफी बढ़ गया और किंग पर प्रेशर है कि कुछ तो करना पड़ेगा। ओके, तो ये सब सारे सीन हो रहा था वर्साई में। और इधर पेरिस में क्या हो रहा है सुनो। पेरिस में तो लाखों की भीड़ गांव से आ गई और एकदम मोनार्कियल पैलेस के सामने से वो भीड़ गुजरी चिल्लाते हुए, रोटी रोटी। राजा लुई 16, ये लुई 16 क्या करता था, सुबह नहा धो के कपड़ा उपड़ा पहन लेता था, खिड़की पर बैठ जाता था और डैम कंस्ट्रक्शन देखता रहता था दूर से, ये बांध कैसे बन रहा है, उसमें अपना वो इंटरेस्ट ढूंढता था। अजीब सा होता है ना कि आप ऐसा चीज में इंटरेस्ट ढूंढ लेते हैं, जैसे आजकल आपके पास मोबाइल है, बिना किसी काम के भी ऐसे ऐसे करते रहते हैं, ऐसे ऐसे, जो बिना इंटरेस्ट आपके मतलब का चीज नहीं है उसमें भी आप दिमाग लगाने लगते। हम आपको लुई 16 से कंपेयर नहीं कर रहे हैं, मगर वो भी वैसे ही डैम कंस्ट्रक्शन में अपना इंटरेस्ट ढूंढ रहा है, जिसका उससे कोई सरोकार नहीं था। उसके लाइफ में कोई वैल्यू एडिशन नहीं होगा इससे, मगर पूरा 1.5 GB डाटा खा जाएगा शाम तक और थक के सो जाएगा।
और कहेगा हम अमेरिका क्यों नहीं बन पाए, हम जापान क्यों नहीं बन पाए। सपने तो ऐसे लिखते हैं, काम करते हैं एकदम दोजख में जाने वाला, और बातें और सपने देखते हैं जन्नतों के। हम लोग इसमें बहुत रेलेवेंट है। बात इमोशनल हो जाएगी, चुभ भी सकती है किसी को, इसीलिए मैं अपने शब्द दोबारा अपने ट्रैक पर लाता हूं। तो रोटी रोटी चिल्ला रहे हैं। हंसी तो दो ही मौके पर आती है, या तो खुद पर या हालात पर। और ये जो आप लोगों की बड़ी बड़ी स्माइली वाली हंसी है ना, ये खुद पर है। एक बच्चा बोल रहा है सर जल्दी से सर बात बदल दीजिए, बहुत दुख हो रहा है। चलिए ठीक है, मैं बात बदल देता हूं, आप कहते हैं तो मैं बात बदल देता हूं। तो वो बांध कैसे बनता है, उसी में अपना इंटरेस्ट ढूंढ रहा है लुईस 16। सामने देखा रोटी रोटी चिल्लाते हुए भीड़ आ रही। और देखो, ये जो फाइनेंस मिनिस्टर होता था ना फ्रांस में, उस हालात में भी फाइनेंस मिनिस्टर, ऐसा माना जाता है कि फाइनेंस मिनिस्टर केवल इकोनॉमिस्ट होना चाहिए। मिडिल क्लास से आते थे, केवल फाइनेंस मिनिस्टर ही मिडिल क्लास से आता था, सब तो एलिट क्लास के लोग होते थे, नोबल्स होते थे। तो फ्रांस को उस वक्त भी अंदाजा था कि वित्त मंत्री कम से कम पढ़ा लिखा अर्थशास्त्री होना चाहिए। ये फ्रांस उस समय भी सोचते थे। तो एक फ्रांसीसी जो फाइनेंस मिनिस्टर था, भाग के पास राजा के पास आया, बोला सर सर आप भीड़ देख रहे हैं कितना है। हाँ बोला, हाँ भीड़ तो दिख रहा है। बोल रहा क्या देख रहा है ये। बोला सर रोटी रोटी चिल्ला रहा है ना, भीड़ गांव से आया है, रोटी नहीं है। तो बोलता क्या ये विद्रोह है। तो फाइनेंस मिनिस्टर ने चुपके से उसकी तरफ मुस्कुराते हुए बोला कि सर ये विद्रोह नहीं है, इसे क्रांति कहा जाता है। ये विद्रोह नहीं है, इसे क्रांति कहा जाता है। इट इज नॉट अ रिवोल्ट बट बेसिकली इट इज अ रिवॉल्यूशन। मिडिल क्लास बड़े सरकास्टिक होते हैं, गर्दन काट देते हैं जब भी वो बोलते हैं अपनी जबान से। मिडिल क्लास के पास तो जबान ही होती है ना, लैंग्वेज होता है, भाषा होता है, और वो हमला उसी भाषा से करता है। तो बोला सर ये विद्रोह नहीं है, क्रांति है। उसके बाद भीड़ जब आगे बढ़ी तो वो दौड़ता हुआ मिडिल क्लास का फाइनेंस मिनिस्टर रानी के पास पहुंचा। बोला मैडम मैडम खिड़की खोलिए ना, भीड़ दिखेगा आपको। तो मैडम ने खिड़की खोला। क्या बोल रहा है ये। मैडम रोटी रोटी खाते हैं, पब्लिक रोटी खाती है, फ्रांस में नहीं है, इसलिए रोटी रोटी बोल रहा है। तो मेरी एंटोनियट बोलती है कि जब वो रोटी नहीं है फ्रांस में तो ये लोग केक क्यों नहीं खाता। आप समझिए कि मोनार्की और क्वीन को यह बात पता नहीं था कि रोटी और केक में महंगा कौन है। तो इस तरह से फ्रांस के जो हालात थे वो एकदम दर बदर खराब होते जाए। और आपको पता है जब सामान्य जनता सड़कों पर उतरती है ना, सामान्य जनता सड़कों पर उतरती है तो उसमें मध्य वर्ग जबरदस्ती नेता बनने की कोशिश करता है और उसको खूब भड़काता है और सत्ता हासिल कर लेता है। ये मध्य वर्ग के लोग बड़े कॉन्स्पायरेटर होते हैं इस हालात में। तो मध्य वर्ग के लोग कूद पड़े और मध्य वर्ग ने मोनार्की के अगेंस्ट में एकदम ललकारा सबको, अरे तुम लोग कर क्या रहा है, हिंसा को करेगा। ठीक है, तो इस तरह से मध्य वर्ग की बात थी। एक जापान में किला था, फोर्ट ऑफ बासिल बोलते थे उसको। द फोर्ट ऑफ बासिल, इट वॉज सिंबल ऑफ द डिस्पोटिक मोनार्की। मध्य वर्ग ने इशारा किया कि किला तोड़ दो, हथियार लेना पड़ेगा इसके अंदर से। क्यों?
पूरी दुनिया की मोनार्की फ्रांस के राजा को सपोर्ट करने के लिए अपनी सेना भेज रही है, हमें लड़ने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, उसके लिए हथियार चाहिए। हथियार तो किले को गिरा दिया, फॉल ऑफ बासिल। और फॉल ऑफ बासिल जब गिरा गिरा जो हथियार वो गिरा, उसमें हथियार था कहां? वहां तो एंटी मोनार्किस्ट का जेल था, वो सब लोग बाहर आ गए। लोगों ने पूछा हथियार नहीं मिला, बोला राजा ने निकाल लिया था। ये मध्य वर्ग बड़ी कॉन्स्पायरेसी में आ चुका है अभी। और जो पोर्ट ऑफ बासिल था वो सिंबल था डिस्पोटिक मोनार्की का, उसके कोलैप्स होते ही रिवॉल्यूशन अपने नेक्स्ट स्टेज में पहुंच चुका था। आया आपको समझ में ये बात? प्रधानमंत्री मोदी जी बासिल डे पर पहुंचे थे, फॉल ऑफ बासिल डे पर पहुंचे थे। उन्हें फ्रांस की सरकार ने निमंत्रण दिया था, क्योंकि इसके बाद से ही क्रांति फ्रांस को एक गणतंत्र बनाई थी। तो इसीलिए जो सिंबल था डिस्पोटिक मोनार्की का वो समाप्त हुआ। ओके, आई होप दिस ऑल इज लुकिंग गुड फॉर यू। इतना लिखना नहीं है, मैंने समझा दिया आपको, और समझाने के पीछे पर्पस यही है कि आपको सीक्वेंस ऑफ द इवेंट जो है वो काफी अच्छे से समझ में आना चाहिए। मैं इस सारे इवेंट्स का हेडलाइन आपको बता देता हूं, बाकी द कॉन्टेक्स्ट आप समझ पाएंगे। ठीक है बच्चे, आ जाओ। अब देखो कोर्स ऑफ द रिवॉल्यूशन, थोड़ा हेडिंग दे दीजिए। कोर्स ऑफ द रिवॉल्यूशन फर्स्ट है मीटिंग ऑफ स्टेट्स जनरल। मैं इसके बारे में लिखाऊंगा, मीटिंग ऑफ स्टेट्स जनरल। उसके बाद है टेनिस कोर्ट ओथ। फिर उसके बाद है फॉल ऑफ बासिल। एंड रिजल्टेड इन द बिगिनिंग ऑफ रिवॉल्यूशन इन फ्रांस। बासिल फोर्ट फ्रांस पेरिस में है, और ये मीटिंग ऑफ स्टेट जनरल, मैंने बताया प्रधानमंत्री जी इस बार आमंत्रित थे बासिल डे परेड को देखने के लिए। तो ये सारी चीजें। ओके, तो मीटिंग ऑफ स्टेट्स जनरल, टेनिस कोर्ट ओथ एंड फॉल ऑफ बासिल। मीटिंग ऑफ स्टेट्स जनरल was organized after 175 years. Meeting of States General was organized after 175 years. 175 years in Versailles. Meeting of States General was organized after 175 years in Versailles. King wanted economic reform in France. King wanted economic reform in France. Economic reform in France. But no reform was presented by the king. No reform was presented by the king. No reform was presented by the king. Therefore, third state
raised the question of, the state raised the question of relevance of king in France. Question of relevance of king in France. They demanded new constitution in France. They demanded new constitution in France. Demanded new constitution in France. They had taken oath in tennis court. They had taken oath in tennis court. They had taken oath in tennis court. Lower priest and lower nobles also supported the oath. Also supported the oath. Lower priest and lower nobles also supported the oath. Also supported the oath. Therefore, meeting of States General which was organized for economic reform, gradually transformed into the political reform. Gradually transformed into the political reform. Gradually transform into the political reform. ओके, पैराग्राफ चेंज करके लिखना कि इन पेरिस lakhs of the people, लाखों लोग, lakhs of the people shouted slogan against monarchy. Shouted slogan against monarchy. They destroyed the fort of Basel, which was symbol of despotic monarchy. They destroyed the fort of Basel, which was symbol of despotic monarchy. Symbol of despotic monarchy. Despotic monarchy. इसको फॉल ऑफ बासिल बोला जाता है. दिस इज अ बासिल डे. So meeting of States General, tennis court oath, fall of Basel. These are the important facts that had
come across. मीरा बाऊ था वो आदमी जिसने पहली बार ये चर्चा किया था कि फ्रांस में राजा को जरूरत है क्या, और उसके बाद फ्रांस में नए कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत होने लगी। ठीक है, अब देखो ना कि लुईस 16 का दिमाग काम कर रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहा है, काम कर रहा है। उसने बोला कि ठीक है नया कॉन्स्टिट्यूशन बना लो, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना, और ये जो थर्ड स्टेट थे जिसमें लोअर प्रिस्ट और लोअर नोबल्स भी थे, राजा ने बोला कि ठीक है आप एक काम करिए कॉन्स्टिट्यूशन बना लीजिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना, इसमें दो तरह के लोग थे, एक तो रिपब्लिकन सपोर्टर थे और दूसरा मोनार्की सपोर्टर थे। राइट, एक तो रिपब्लिकन सपोर्टर थे, दूसरा मोनार्की सपोर्टर थे। रिपब्लिकन चाहता था कि नो किंग इन द फ्रांस, मोनार्की चाहता था कि सॉवरेनिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी इन द हैंड्स ऑफ किंग। तो डिस्पोटिक व मोनार्की, हालांकि इसमें जो प्रोविजन था कि सेपरेशन ऑफ पावर्स होगा, ठीक है, चर्च को की सारी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी, और चर्च जो है, प्रिस्ट जो है वो देश के संप्रभुता के लिए अपना शपथ लेंगे। तो ये सब प्रोविजन लाया गया। तो स्टेजेस ऑफ रिवॉल्यूशन, stages of revolution. There are three stages. There are three stages of revolution. There are three stages of revolution. First phase is phase of constitutional monarchy. First phase is phase of constitutional monarchy. Second phase, the phase of radical republicanism. हम हर एक फेज को समझाएंगे। और थर्ड फेज है द स्टेज ऑफ लिबरल रिपब्लिकनिज्म। आप जानते हैं 89 में मीटिंग ऑफ स्टेट्स जनरल हुई थी, एंड इमीडिएटली देयर आफ्टर देयर वाज बिगिनिंग ऑफ द रिवॉल्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आया कि सॉवरेनिटी ऑफ द किंग ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन, 1789 to 92। सेकेंड फेज आया द फेज ऑफ रेडिकल रिपब्लिकनिज्म, थर्ड फेज आया द स्टेज ऑफ लिबरल रिपब्लिकनिज्म। ये सारे फैक्टर्स जो है ना काफी बेहतरीन तरीके से ऑर्गेनाइज हुआ था। फेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। तो फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज एंड थर्ड फेज, ये कॉपी किया सारे बच्चों ने। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन, देयर आर थ्री स्टेजेस ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, द फेज ऑफ रेडिकल रिपब्लिकनिज्म, द स्टेज ऑफ लिबरल रिपब्लिकनिज्म। So phase of constitutional monarchy, the phase of radical republicanism. So what is this phase of
कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। मैं आपको बताता हूं क्या स्टार्ट हुआ था इसमें, व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। The third state, the third state was called National Assembly. Was called National Assembly. Third state was called National Assembly. It constituted the executive, the legislature, and judiciary. The executive, the legislature, and judiciary. Third stage was called constitutional monarchy. National Assembly, it constituted executive, legislature, and judiciary. Therefore, the principle of separation of powers was applied. The principle of separation of powers was applied. The principle of separation of powers was applied. Principle of separation of powers was applied. Powers was applied. Citizens for voting were divided into two parts, active and passive. Active and passive. एक्टिव सिटीजन होता था जिसको वोटिंग राइट होगा, और पैसिव सिटीजन होगा वो केवल सिटीजनशिप का राइट एंजॉय करेगा एक्सेप्ट वोटिंग। पूरे यूरोप में ये थी बात, वेस्ट में, कि वोटिंग राइट सबको नहीं देना है, वोटिंग राइट सबको नहीं देना है क्योंकि सब वोटिंग करने लायक नहीं है। ठीक है, सो थर्ड स्टेट्स, द मीटिंग ऑफ स्टेट्स जनरल, National Assembly. Citizens for voting were divided into two parts, active citizen and passive citizen. France became the secular state and property of church was confiscated. ये जो डेमोक्रेसी होती है ना, ये मिडिल क्लास का वर्चस्व है। इसमें मिडिल क्लास हमेशा डेमोक्रेटिक होता है। द सेक्युलर स्टेट वॉज एस्टैब्लिश्ड एंड चर्च प्रॉपर्टी वॉज टेकन ओवर एंड द क्लर्जी वेर आस्क्ड टू टेक एन ओथ ऑफ एलिजियंस टू द स्टेट। मतलब जो प्रिस्ट है उसको बोला गया कि राज्य के लिए काम शपथ लीजिए कि आपकी लॉयल्टी स्टेट के लिए होगी। सो दीज आर द इंटरेस्ट ऑफ द मिडिल क्लास। मतलब ये मिडिल क्लास के डोमिनेंस वाला ये फेज था। So these are the important things you observe here in the first stage of the French Revolution. ठीक है, property of church was confiscated. Priests were asked to take oath for the allegiance of state. So it was altogether in the interest of the middle class. Why French Revolution is called middle class revolution? आराम से इस क्वेश्चन का जवाब देना सारे बच्चे। Sometimes this question is asked, why French Revolution was called middle class revolution? Why French Revolution was called middle class revolution? ये चीज आप आंसर करिएगा। Why French Revolution was called middle class revolution?
4-5 बात तो है ही। सिटीजनशिप फॉर वोटिंग वॉज क्लासिफाइड इन 2 कैटेगरीज, एक्टिव, पैसिव। कुछ लोगों को वोटिंग राइट दिया गया, उसको एक्टिव सिटीजन बोला गया। ओके। उसके बाद सेपरेशन ऑफ पावर्स, मतलब जो थर्ड स्टेट के लोग थे उसी में से एक्सिक्यूटिव, जुडिशियरी और लेजिस्लेचर तीनों बनाया गया और उनके बीच में सेपरेशन ऑफ पावर्स। सेकुलर स्टेट होगा, चर्च की संपत्ति जब्त हो जाएगी। ओके। एंड प्रीस्ट वेर आस्क्ड टू टेक द एलिजियंस ऑफ द स्टेट। So this entire episode is related to, it is called middle class revolution. It is called the interest of the middle class. In this phase, supremacy of king on constitution was accepted. Therefore, it is a phase of constitutional monarchy. जैसे इंग्लैंड में है वैसा फ्रांस में होगा। यह प्रेडिक्शन किया गया इस फेज में। राजा रहेगा, मोनार्की भी खुश, डेमोक्रेटिक होगा, मिडिल क्लास भी खुश। These fundamentals was rightly justified. Yes, these are the democracy, some property rights, all are the powers of the middle class. Powers of the middle class. Okay, so this is what is called principle of separation of power. अगर इस बीच में देखो ये मोनार्की और रिपब्लिकनिज्म जो सामने लेकर के आया ना, उसमें ज्यादा कुछ प्रोग्रेस हो नहीं रहा, इसलिए लोगों का सपोर्ट अब मोनार्की से बिल्कुल समाप्त हो चुका है और इसलिए जो नया फेज आएगा उसको बोलते हैं फेज ऑफ रेडिकल रिपब्लिकनिज्म। और इस फेज में जैकोबियंस काफी डोमिनेट करेगा। स्टोरी बहुत शानदार है, मैं बताऊंगा कि ये लोग जैकोबियंस कौन होते थे, जिरोंडिस्ट कौन होते थे और जिरोंडिस्ट कितना अनप्रैक्टिकल था उसके एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा। और जिरोंडिस्ट ने किस तरह से फ्रांस में एक रेन ऑफ टेरर चलाया कि लुई 16 को हैंग किया, जिलोटाइन पर चढ़ाया, ऐसे लेटा देते थे और गर्दन पर गिरती थी तलवार, गर्दन कट जाता था, इसको गिलोटाइन बोला जाता, तो उसको गिलोटाइन पर चढ़ाया। और उसके बाद अल्टीमेटली हम क्या देखते हैं कि थाउजेंड्स ऑफ द पीपल वेयर, जब राजा को चढ़ा रहा था ना, सैकड़ों लोग जमा थे देखने के लिए कि कैसे कैसे गिलोटाइन लगता है, गर्दन कटते हुए देखना चाहते। और जब राजा चिल्ला रहा था कि मैं निर्दोष हूं निर्दोष हूं, लोग बोलने लगा लगता है निर्दोष है निर्दोष है। तो लोगों ने बहुत अपोज किया कि क्यों फांसी लगा रहे हो, मैं भी मोनार्किस्ट हूं, फांसी लगा दो। जैकोबियंस ने बोला कि ठीक है, जब इतनी इच्छा है तो आ जाओ। हजारों लोगों को फांसी पर चढ़ा दिया, गिलोटाइन पर चढ़ा दिया था जैकोबियंस ने। और इस तरह से फ्रांस में एक रेन ऑफ टेरर आया। और ये जो रेन ऑफ टेरर आया उस दौरान तो हद हो गई, एकदम सबने अपने अपने प्रिविलेज वापस कर दी। राजा ने भी अपने प्रिविलेज मोनार्की ने भी अपने प्रिविलेज वापस किए, प्रिस्ट ने भी प्रिविलेज वापस किए, नोबल्स ने भी किए, सबने अपने अपने प्रिविलेज वापस किए। तो इस तरह से फ्रांस में एक नया दौर आया और इस तरह से फ्रांस में इक्वालिटी स्टैब्लिश हुई थी। एक लास्ट फोटो देख लो गिलोटाइन का, तुमको लगता होगा कि फांसी कैसे दी जाती थी। ये देख लो, इस पर गर्दन घुसा देते थे, ये तलवार गिरता था और गर्दन कट जाती और इसको गिलोटाइन बोला जाता था। फ्रांस में लुई 16 को बड़े आराम से काटा, एकदम आराम से कट जाता था, कोई ज्यादा दर्द नहीं होता था। तो इस तरह से
फ्रांस में हजारों लोगों को गिलोटाइन पर चढ़ा दिया था। इसको रेन ऑफ टेरर बोला जाता है। यहीं से तो नाजी और फांसी निकलेगा। कल बात करेंगे इस पर। थैंक यू सो मच। दैट्स ऑल फॉर द डे।